Hello and welcome to the Sardana Academy. In this segment, we are going to discuss about the geography. We have already discussed so many aspects of geography like universe and solar system, interior of Earth, latitudes, longitudes and the atmosphere. We have already discussed all these topics. Now we are going to discuss about the heat budget and climatology of Earth. So let us start without any further ado. Heat budget. What is called as heat budget? You have already observed that the union budget आप लोगों ने अभी ऑब्जर्व किया होगा कि उसमें बजट का मतलब क्या होता है. बजट इज द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट. It is the statement of income and expenditure of the government. And in the same way, there is a budget in the geography too. And this budget in geography is called as heat budget. This heat budget is related with the energy which is inclined on Earth and the energy which is radiated by the Earth. These energy must be equal. So it is called as heat budget. If it will be unbalanced, the result would be that the Earth will be getting warmer or will be getting cooler. But it cannot be possible at present. Therefore, in this situation, the heat budget of Earth is totally balanced. So let us discuss what is heat budget. So heat budget, the energy which is provided by the sun on the Earth is called as insolation energy, and this insolation energy is properly used by the atmosphere as well as the Earth's surface. Some part of it is absorbed by the Earth, some part of it is absorbed by the atmosphere, some part of it is radiated again into the space by the Earth and by the atmosphere. So let us discuss. All these things must be equal, and this equal aspect is called as heat budget. So the inclined energy from Earth to the sun is called as insolation, and the reflected energy by the Earth into the space is called as terrestrial radiation. Is called as terrestrial radiation. मतलब कि जो ऊर्जा सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त होती है, ये ऊर्जा इंसोलेशन कहलाती है, और जो ऊर्जा पृथ्वी द्वारा वापस स्पेस में रिफ्लेक्ट कर दी जाती है, परावर्तित कर दी जाती है, इस रिफ्लेक्टेड एनर्जी को टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहा जाता है. दिस एनर्जी इज कॉल्ड एज टेरेस्ट्रियल रेडिएशन. एंड बोथ insolation energy and terrestrial radiation energy must be equal. अगर ऐसा नहीं है तो पृथ्वी या तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी या बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएगी. जैसे अभी हम लोग कह रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और ग्लोबल वार्मिंग का मेन रीज़न है कि हमारे यहाँ जो मैनकाइंड है, ये जो कार्बन एमिशन कर रहा है, इस कार्बन एमिशन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है. पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, और पृथ्वी के तापमान के बढ़ने की वजह से अर्थ इज गेटिंग वार्मर, एंड ड्यू टू दैट वार्मिंग द आइस कैप ऑन अर्थ इज गेटिंग मेल्टेड, एंड ड्यू टू दिस मेल्टिंग the sea level is rising, and due to that rising of sea level, the coastal areas and small islands are getting submerged. Since these are perfectly balanced, the earth is neither too warm nor too cold. The equilibrium that exists between the insolation and the terrestrial radiation is called the heat budget of the earth. तो अभी हम लोग ने डिस्कस किया था, insolation is the inclined energy, terrestrial radiation is the reflected energy of earth into the space. तो ये जो इंक्लाइंड एनर्जी होती है, जिसे इंसोलेशन कहते हैं, ये शॉर्ट वेव की फॉर्म में होती है, जो पृथ्वी परावर्तित करके वापस अंतरिक्ष में एनर्जी को भेज देती है. टेरेस्ट्रियल रेडिएशन ये लॉन्ग वेव होता है, और ये दोनों ही बराबर होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए. तो
तो ये देखिए, ये एक इमेज है, एनसीईआरटी से ली है। इसमें ये इंसुलेशन का ग्राफ है शॉर्ट वेव की फॉर्म में। 100% रेडिएशन सन का पृथ्वी पर आया। इस 100% रेडिएशन में एटमॉस्फेयर ने, क्लाउड्स ने जो एब्जॉर्ब किया, ये एब्जॉर्प्शन वाला पार्ट है 34%। जो रिफ्लेक्टेड वाला पार्ट है ये 27%। क्लाउड ने ही रिफ्लेक्ट कर दिया, 2% अर्थ ने रिफ्लेक्ट कर दिया। यहां जो टोटल एब्जॉर्प्शन हुआ इस इंसुलेशन का एटमॉस्फेयर में वो था 14%, 14 यूनिट, और जो अर्थ ने एब्जॉर्ब किया वो था 17 यूनिट। बाकी अर्थ ने जो यहां से स्कैटर किया स्पेस में वो था 6 यूनिट। ये पूरा का पूरा इंसुलेशन का ग्राफ है, इंसुलेशन का डिपिक्शन है, इंसुलेशन का शॉर्ट वेव का रिप्रेजेंटेशन है। अब लॉन्ग वेव का रिप्रेजेंटेशन हम लोग देख लेते हैं। जो अर्थ इस इंसुलेशन को रिफ्लेक्ट करती है वापस स्पेस में, तो ये देखिए अर्थ ने 17% स्पेस में रिफ्लेक्ट कर दिया और यहां पर 6% स्कैटर किया था, तो 6% ये स्कैटर्ड एनर्जी है। तो टोटल हो गई, अर्थ ने जो रेडिएट किया वो 23 हो गई। रेडिएटेड टू स्पेस बाय एटमॉस्फेयर। अब यहां पर एटमॉस्फेयर ने भी रेडिएट किया हुआ है। अब इस एटमॉस्फेयर का रेडिएटेड है 48 यूनिट। अर्थ ने टर्बुलेंस और कन्वेक्शन के थ्रू 9 यूनिट को यूज किया था। टर्बुलेंस और कन्वेक्शन के थ्रू 9 यूनिट कंज्यूम हो गई थी। कंडेंसेशन के थ्रू 19 यूनिट का यूज हो गई हैं। तो ये लॉन्ग वेव का टेरेस्ट्रियल रेडिएशन का रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब इसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम लोग इस प्रकार से समझते हैं। देखिए, द टोटल इंसुलेशन रिसीव्ड एट द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर इज कंसीडर्ड एज 100%. A certain amount of energy is reflected, scattered and absorbed while passing through Earth atmosphere. मतलब पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से पास होते हुए जो इंसुलेशन आ रहा है सूर्य का, ये 3 प्रकार से यूज होता है। एब्जॉर्ब होता है, स्कैटर होता है और रिफ्लेक्ट होता है। एब्जॉर्ब होता है, स्कैटर होता है, रिफ्लेक्ट होता है। Approximately 35 units are reflected to space even before reaching the Earth atmosphere. तो ये जो 35 यूनिट हैं ये पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ही रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए 27% क्लाउड ने कर दिया था, 2% अर्थ ने कर दिया, यानी कि 29 हो गया, और ये 6% जो था ये स्कैटर हो गया था। तो 29 + 6 कितना हो गया? 35. 35 units are scattered to space even before reaching the Earth's surface. Of these, 27 units are reflected from the top of the clouds. 2 units are from snow, ice-covered areas of the Earth. Reflected amount of radiation is called as albedo of Earth. तो अर्थ के ऊपर जो आइस कैप जमा है, जो बर्फ जमा हुई है, ये बर्फ सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्शन करती है। हम लोगों को पता है ना कि गर्मियों में कभी भी काले डार्क कलर के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, हमेशा लाइट कलर के कपड़े पहनने चाहिए, और विंटर्स में हमेशा डार्क कलर के, ब्लैक कलर के कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि जो ब्लैक बॉडी होती है ये गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट होती है, और जो लाइट कलर के या वाइट कलर के कपड़े होते हैं ये गुड रिफ्लेक्टर होते हैं। तो जो स्नो है ये वाइट कलर की होती है, ये गुड रिफ्लेक्टर होती है, और इसी वजह से जो सनलाइट आती है उसका 2% यही स्नो रिफ्लेक्ट कर देती है, और जो स्नो रिफ्लेक्ट करती है इसे कहा जाता है एल्बिडो। ये होता है एल्बिडो। द रिमेनिंग 65 यूनिट, अब आपने देखा 35 यूनिट तो पहले ही रिफ्लेक्ट हो गई, अब जो बची 65 यूनिट, ये रिमेनिंग 65 यूनिट या आर एब्जॉर्ब्ड, 14 यूनिट्स विद इन द एटमॉस्फेयर, 51 यूनिट्स बाय द अर्थ सरफेस। 14 यूनिट्स जो हैं वो
एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर लेता है। देखिए ये यहाँ पर लिखा है 14 यूनिट्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय द एटमॉस्फेयर, और जो रिमेनिंग 51 है ये अर्थ एब्जॉर्ब कर लेती है। तो यहाँ पर देखिए अर्थ ने 17 यूनिट्स को यहाँ पर एब्जॉर्ब किया था, 34 यूनिट्स को यहाँ पर एब्जॉर्ब किया था। तो 17 प्लस 34 कितना हुआ? 51। तो 51 यूनिट अर्थ ने एब्जॉर्ब कर ली, 14 यूनिट क्लाउड्स ने या एटमॉस्फेयर ने एब्जॉर्ब कर ली, तो टोटल हो गया 65 यूनिट एब्जॉर्प्शन। द अर्थ रेडिएट्स बैक 51 यूनिट्स इन द फॉर्म ऑफ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। तो ये जो 51 यूनिट अर्थ ने एब्जॉर्ब किया, इस पूरे के पूरे 51 को ही ये रिफ्लेक्ट करेगी, तभी हीट बजट बैलेंस रहेगा। तो अब देखते हैं कि ये जो 51 यूनिट का टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता है ये कैसे होता है। ऑफ दीज 17 यूनिट्स आर रेडिएटेड टू स्पेस डायरेक्टली and the remaining 34 units are absorbed by the atmosphere। 17 यूनिट्स जो हैं ये डायरेक्टली स्पेस में रेडिएट कर दी जाती हैं, जबकि 34 यूनिट्स एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर लेता है। 48 यूनिट्स एब्जॉर्ब्ड बाय द एटमॉस्फेयर, 14 यूनिट्स फ्रॉम इंसोलेशन, 34 यूनिट्स फ्रॉम टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। तो एटमॉस्फेयर ने कितना रेडिएशन एब्जॉर्ब किया? टोटल 48 यूनिट। अभी हम लोगों ने देखा था कि 14 यूनिट एटमॉस्फेयर यहां पर एब्जॉर्ब कर रहा था, 14 यूनिट यहां पर एब्जॉर्ब कर रहा था, 34 यूनिट यहां पर उसने एब्जॉर्ब किया टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को। तो ये 34 यूनिट यहां और 14 यूनिट यहां, टोटल 48 यूनिट एटमॉस्फेयर ने एब्जॉर्ब किया रेडिएशन को। Thus the total radiation returning from the earth and the atmosphere respectively is 48 plus 17, तो हो गया 65 यूनिट। तो इस तरीके से अर्थ जो है 65 यूनिट एब्जॉर्ब करती है और 65 यूनिट ही वापस रिफ्लेक्ट कर देती है। इस तरीके से जो इनकम हुई थी वही एक्सपेंडिचर हुआ, उतना ही एक्सपेंडिचर हुआ, जो इंसोलेशन हुआ उतना ही टेरेस्ट्रियल रेडिएशन हुआ। इसे ही कहते हैं बैलेंस्ड बजट, बैलेंस्ड हीट बजट। और इसी बैलेंस्ड हीट बजट की वजह से अर्थ ना तो ज़्यादा गर्म हो पाती है ना ही ज़्यादा ठंडी हो पाती है। अगर ये हीट बजट जो है इम्बैलेंस हो जाए तब पृथ्वी का तापमान या तो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगा या बहुत ज़्यादा कम होने लगेगा, और उस कंडीशन में लाइफ कैन नॉट सस्टेन ऑन दिस अर्थ। तो लाइफ को अर्थ पर सस्टेन करने के लिए ये हीट बजट का बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर क्वेश्चन आता है हीट बजट से एग्ज़ाम में, तो अब आप इसको प्रॉपरली समझा सकते हैं कि कितना परसेंट एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब करता है, कितना परसेंट अर्थ एब्जॉर्ब करती है, कितना परसेंट अर्थ का टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता है, एल्बिडो कितने परसेंट होता है, इंसोलेशन कितने परसेंट होता है। तो आज ये है हीट बजट। अब हम लोग इसके आगे डिस्कस करते हैं अपना जो नेक्स्ट पार्ट है जिसे कहा जाता है क्लाइमेटोलॉजी। ये हीट बजट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसे सेंटर फॉर एनवायरमेंटल स्टडीज़ ने डेवलप किया था। तो सेंटर फॉर एनवायरमेंटल स्टडीज़ का ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वैसे ही है। इसमें देखिए सन से जो हीट आ रही है ये एटमॉस्फेयर में भी एब्जॉर्ब हो रही है, अर्थ भी एब्जॉर्ब कर रहा है। अब जो अर्थ एब्जॉर्ब कर रही है उसको रिफ्लेक्ट किया जा रहा है। अब ये जो रिफ्लेक्ट हो रही है ये इंफ्रारेड की फॉर्म में हो रही है, इंफ्रारेड से स्पेस में जा रही है, इंफ्रारेड से एटमॉस्फेयर में जा रही है, लेटेंट हीट में कन्वर्ट हो रही है, कन्वेक्शन और कंडक्शन हो रहा है। तो इस तरीके से ये वही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। बस अंतर इतना है कि वो एनसीईआरटी के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया था, ये सेंटर फॉर एनवायरमेंटल स्टडीज़ के थ्रू शो किया गया है। तो अब क्लाइमेटोलॉजी को हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए क्लाइमेट और वेदर में क्या डिफरेंस होता है। क्लाइमेट इज द लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ चेंजेस इन वेदर।
वेदर में अगर लंबे समय तक चेंज आते रहें तो इसे क्लाइमेट कहा जाता है। वेदर जो होता है फॉर अ शॉर्टर ड्यूरेशन होता है, कम टाइम के लिए जो चेंजेस आते हैं एटमॉस्फेयर में उन्हें वेदर कंडीशंस कहा जाता है। इसे हिंदी में मौसम तथा जलवायु कहते हैं। मौसम जो है इसे वेदर कहा जाता है, जलवायु इसे क्लाइमेट कहा जाता है। तो क्लाइमेट जो है किसी पर्टिकुलर रीजन का होता है, अलग अलग रीजन्स का क्लाइमेट अलग अलग होता है और ये हमेशा फिक्स होता है, कभी भी चेंज नहीं होता। पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में पर्टिकुलर एरिया का पर्टिकुलर चेंज इन वेदर इज कॉल्ड क्लाइमेट। तो चलिए क्लाइमेट के बारे में डिस्कस करते हैं। कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ पर्टिकुलर प्लेस एंड टाइम इज कॉल्ड एज क्लाइमेट, नहीं इज कॉल्ड एज वेदर, क्योंकि एटमॉस्फेयर की बात हुई है ना। एटमॉस्फेयर का किसी पर्टिकुलर टाइम पर किसी पर्टिकुलर जगह पर जो एटमॉस्फेयर होगा उसे वेदर कहेंगे। और क्लाइमेट जो होता है वेदर कंडीशंस अ पर्टिकुलर लोकेशन ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज क्लाइमेट। तो क्लाइमेट जो है एक लॉन्गर पीरियड के लिए वेदर कंडीशंस में चेंज होना किसी पर्टिकुलर टाइम पर किसी पर्टिकुलर प्लेस पर इज कॉल्ड एज क्लाइमेट। तो क्लाइमेट और वेदर में आपको डिफरेंस आ गया होगा। वेदर इज फॉर अ शॉर्टर टाइम, क्लाइमेट इज फॉर अ लॉन्गर टाइम। वेदर is the atmospheric changes while climate is the change in weather conditions, और ये पर्टिकुलर लोकेशन पर होती है, लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होती है क्लाइमेट में। अब इसके क्लाइमेट में चेंज होने के कारण क्या होते हैं, जैसे वेपर्स कंडीशंस हो सकती हैं, इसके अलावा एल्टीट्यूड हो सकता है, टोपोग्राफिकल चेंजेस आ सकते हैं, एलिवेशन या एयर मूवमेंट की वजह से चेंज आ सकते हैं, या क्लाउड कवर की वजह से चेंज आ सकते हैं। तो ये सारे चेंजेस आ सकते हैं वेदर कंडीशंस में किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन पर। अब जैसे मान लीजिए कि आज मैं कहीं किसी प्लेस पर हूँ और वहाँ पर अचानक से बादल आ जाएं, तो वो बादल आने की वजह से उस पर्टिकुलर एरिया का वेदर अफेक्ट हो जाएगा, लेकिन उससे 100 किलोमीटर आगे का वेदर जो होगा वहाँ धूप खिली रहेगी, वहाँ लाइट रहेगी, वहाँ पर गर्मी रहेगी, जबकि इस एरिया में ठंडक रहेगी, थोड़ी बहुत नमी रहेगी एटमॉस्फेयर में। तो ये वेदर कंडीशन कहलाएगी, क्योंकि ये बहुत थोड़े समय के लिए हुआ था और एक पर्टिकुलर प्लेस पर हुआ कुछ समय के लिए, तो ये वेदर कंडीशन कहा जाएगा। अब अगर मान लीजिए कि पूरे इंडिया की बात की जाए कि जून जुलाई में इंडिया में मॉनसून सीज़न रहता है, तो ये इंडिया का क्लाइमेटिक कंडीशन कहलाएगा, क्योंकि उस समय पूरे लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए 3-4 महीनों के लिए बारिश का सीज़न पूरे देश में रहता है। तो ये पर्टिकुलर रीजन पर्टिकुलर प्लेस के लिए छोटे समय के लिए की बात नहीं हो रही, तो इसे कहेंगे क्लाइमेट। वेदर एक्सट्रीम्स भी होते हैं। अब जैसे हरिकेन्स या टाइफून्स हैं, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, हरिकेन्स या टाइफून्स जो होते हैं वेट साइक्लोन्स होते हैं, वेट साइक्लोन्स होते हैं। साइक्लोन्स किन्हें कहा जाता है, साइक्लोन्स को कहते हैं जब किसी एरिया में पर्टिकुलर एरिया में लो प्रेशर जोन डेवलप होती है, तो लो प्रेशर जोन के डेवलप होने से उस लो प्रेशर जोन को कवर करने के लिए चारों तरफ से हाई प्रेशर जोन अगर है तो वहाँ से एयर आती है अप फ्रंट, और उस एयर के साथ वेट क्लाउड्स भी आते हैं, और वो क्लाउड्स वहाँ पर थंडर स्टॉर्म्स के साथ बारिश भी करते हैं, तो इसे साइक्लोन कहा जाता है। तो ये वेट साइक्लोन्स होते हैं। जैसे वेट साइक्लोन्स को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे हरिकेन कहते हैं अमेरिका में, यूएसए में, टाइफून्स कहा जाता है चाइना और जापान में, इंडिया में इन्हें चक्रवात कहा जाता है, चक्रवात इंडिया में। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया में इन्हें विली विलाई कहा जाता है, विली विलाई। तो ये विली विलाई ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में आते हैं। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग वेट साइक्लोन्स को नाम दिया जाता है। टॉर्नेडो, जैसे आप यहाँ पर ये देख पा रहे हैं इमेज, ये टॉर्नेडो की इमेज है। यहाँ पे जो हवाएं होती हैं वो घूमते हुए सर्कुलर फॉर्म में ऐसे आती हैं, लाइटनिंग होती है, लेकिन पानी नहीं बरसता, क्योंकि ये ड्राई साइक्लोन्स हैं।
यहाँ हम लोगों ने बात की वेट साइक्लोन्स की। टॉर्नेडोज आर कंसीडर्ड एज ड्राई साइक्लोन्स, और ये लैंड पर आते हैं, ये कोस्टल एरियाज में नहीं आते, ये पूरे उस पर नहीं आते, ये लैंड पर ही रहते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे इमेज में, ये लाइट जल रही है, रात का समय है, तो लाइट तो हमेशा लैंड पर जलती है, तो ये लाइट जलती रहती है, लोग लैंड पर रहते हैं, और यहाँ पर ऊपर साइक्लोन आता रहता है, ड्राई साइक्लोन जिसे कहते हैं टॉर्नेडो। तो ये ज़्यादातर अमेरिका में ही आते हैं, अमेरिका का ही फीचर है, इंडिया का फीचर नहीं है। ब्लिजर्ड्स क्या होते हैं? ब्लिजर्ड्स बहुत ठंडी हवाएं हैं जो ज़्यादातर पोलर रीजन्स में चलती हैं, और उनके चलने की वजह से स्नोफॉल होने लगता है। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल कारें जो हैं स्नो से ढक गई हैं, कवर हो गई हैं, तो इन्हें ब्लिजर्ड्स कहा जाता है। ड्रॉट एंड फ्लड्स जो हैं ये ट्रॉपिकल कंट्रीज़ का फिनोमेना है, जहाँ पर ज़्यादा बारिश नहीं होती वहाँ पर सूखा पड़ जाता है, और वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा पानी के कमी की वजह से प्यासे रहने लगते हैं और मरने लगते हैं। जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है वहाँ पर फ्लड आने लगते हैं, बाढ़ आने लगती है, जैसे आप यहाँ पर इमेज पे देख पा रहे हैं, ये फ्लड का सीन है। तो ये वेदर एक्सट्रीम्स कहे जाते हैं, ये सब वेदर एक्सट्रीम्स हैं। इन वेदर एक्सट्रीम्स को मिला करके ही बनता है क्लाइमेट। जैसे अभी हमने कहा कि ड्रॉट और फ्लड ट्रॉपिकल क्लाइमेट का फीचर है, टॉर्नेडो जो है ये अमेरिकन क्लाइमेट का फीचर है। फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट, तो क्लाइमेट को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं? जैसे विंड करेंट्स होती हैं, तो ये जो विंड करेंट्स हैं ये हमारे यहाँ इंडिया में लू चलती है गर्मियों में, और जब लू चलती है, लू एक गर्म विंड है, और इस हॉट विंड की वजह से लो प्रेशर बेल्ट जनरेट होती है, और इस लो प्रेशर बेल्ट को कवर करने के लिए बे ऑफ बंगाल से बहुत ज़्यादा अमाउंट में हाई प्रेशर आती है, और इस हाई प्रेशर बेल्ट की वजह से क्लाउड्स भी इंडिया में एंटर हो जाते हैं, और इस तरीके से 1 जून को इंडिया में मानसून एंटर हो जाता है ड्यू टू विंड करंट नोन एज लू। तो ये विंड करंट की वजह से होता है। ओशन करंट की वजह से भी साइक्लोन्स अफेक्ट होते हैं। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि एल नीनो चलने लग जाती है, जहां बेंगुएला चलती है वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका पर, वहाँ पर वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका में, वहाँ पर कभी कभी एल नीनो चलने लग जाती है, और एल नीनो के चलने से लो प्रेशर बेल्ट वहाँ जनरेट हो जाती है, जिसकी वजह से इंडिया में वो जो लो प्रेशर बेल्ट का एरिया जनरेट होना था वो नहीं हो पाता, और इस वजह से मानसून में डिले हो जाता है, मानसून लेट आता है। तो ये कंडीशन ओशन करंट्स की वजह से डेवलप होती है। जोन्स ऑफ लैटिट्यूड, जोन्स ऑफ लैटिट्यूड का मतलब है, हम लोगों ने लैटिट्यूड डिस्कस किए थे, इक्वेटोरियल रीजन, ट्रॉपिकल रीजन, पोलर रीजन, आर्कटिक सर्किल रीजन, एंटार्कटिक सर्किल रीजन। तो ये जो जोन्स ऑफ लैटिट्यूड हैं, तो हम लोगों ने डिस्कस किया था इक्वेटोरियल रेनफॉल, इक्वेटर के आसपास 10 किलोमीटर 10 डिग्री नॉर्थ 10 डिग्री साउथ, ये इक्वेटोरियल रीजन कहलाता है। और यहाँ पर जो बारिश होती है गर्मी की वजह से, यहाँ पर सनलाइट जो है वर्ष में पूरे ईयरली हमेशा रहती है, और सनलाइट रहने की वजह से गर्म एरिया होता है, टॉरिड जोन होती है, टॉरिड जोन की वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा होने की वजह से लो प्रेशर एरिया हमेशा रहता है, तो इसीलिए यहाँ पर रोज़ बारिश होती है। तो इक्वेटोरियल रेनफॉल को 4 o'clock रेनफॉल भी कहा जाता है। 4 o'clock रेन, यहाँ पर शाम के 4 बजेंगे और बारिश होगी ही होगी। सबको पता रहता है कि इक्वेटोरियल रीजन में रहने वाले लोगों को कि यहाँ बारिश होगी ही होगी। तो इस वजह से 2 बजे के बाद जब ये लोग घर से निकलते हैं तो अपने साथ अम्ब्रेला या रेनकोट जैसी फैसिलिटी लेकर के निकलते हैं कि कहीं भीग ना जाएं, क्योंकि बारिश होने का टाइम हो गया है। और बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं इक्वेटोरियल रीजन में जहाँ पर इक्वेटोरियल रेनफॉल होता है। अब अगर रोज़ बारिश हो रही है तो एटमॉस्फेयर कूल एंड काम होगा, बहुत ज़्यादा प्योर होगा, डस्ट पार्टिकल्स और पॉल्यूटेंट्स नहीं होंगे एनवायरनमेंट में। तो जो बारिश हो रही है, इस बारिश का पानी अगर स्टोर कर लिया जाए, कलेक्ट कर लिया जाए, वाटर हार्वेस्टिंग कर ली जाए, तो इन्हें उन कंट्रीज़ में ड्रॉट प्रोन कंट्रीज़ में इन्हें सेल किया जा सकता है। ड्रॉट प्रोन कंट्रीज़ जैसे सऊदी कंट्रीज़ हैं, ओमान है, यमन है, यहाँ पर सेल किया जा सकता है।
इथियोपिया है, सोमालिया है, नाइजीरिया है, यहाँ पर सेल किया जा सकता है। तो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे कंट्रीज़ ने, इक्वेटोरियल रेनफॉल वाली कंट्रीज़ ने अपनी जीडीपी को जनरेट करने के लिए यही रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मेथड अडॉप्ट किया हुआ है। जैसे बेलिज़ है एक कंट्री, बेलिज़ की कैपिटल है बेल्मोपान। यहाँ नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के यहाँ बॉर्डर पर, यहाँ पर एक बहुत छोटी सी कंट्री है बेलिज़। तो ये बेलिज़ ने अपनी जीडीपी यही बनाई हुई है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का पानी एक्सपोर्ट करना। तो ये एक रेवेन्यू जनरेशन का भी मीडियम हो सकता है उन कंट्रीज़ में जिनके पास और कोई अदर सोर्सेज नहीं है रेवेन्यू जनरेशन के। तो ये बहुत ही अच्छा एक फीचर है जोन ऑफ लैटिट्यूड का। एलिवेशन की बात करें तो जैसे माउंटेनस रीजन में आप जाते हैं, आप हिमालय पर चले जाइए तो वहाँ पर टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि इंडिया में नॉर्मल लैप्स रेट जो है 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर है। तो इस वजह से टेम्परेचर ठंडा हो जाता है, कूल एंड काम हो जाता है। तो टेम्परेचर में चेंज को ही क्लाइमेट कहते हैं। टोपोग्राफिकल कंडीशंस भी क्लाइमेट पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती हैं। ग्लोबल वार्मिंग भी क्लाइमेट पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है। जैसे मान लीजिए कि जहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, कार्बन एमिशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसकी वजह से एटमॉस्फेयर में जो सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड इज़ अ ग्रीन हाउस गैस, एंड दिस ग्रीन हाउस गैस react with water vapors into the atmosphere, and due to the reaction of water vapors with sulfur dioxide it forms sulfuric acid, and when sulfuric acid will start raining it is called as acid rain। तो एसिड रेन होने लग जाता है। ताजमहल इसी एसिड रेन की वजह से पीला पड़ रहा है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट है। तो ग्लोबल वार्मिंग भी एटमॉस्फेयर में क्लाइमेटिक रीजन्स में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं क्लाइमेट के। वर्ल्ड में सबसे ऑथेंटिक क्लाइमेटिक जोन्स जो डिफाइन की हैं वो एक रशियन जर्मन साइंटिस्ट ने की, जिनका नाम है व्लादिमीर कोपेन ने क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशंस को डेवलप किया है। एक्चुअली उन्होंने 5 जोन्स बताए हैं क्लाइमेट के, लेकिन ये जो 5 जोन्स हैं, इन 5 जोन्स में 12 क्लासिफिकेशन किए गए। देयर आर 12 क्लाइमेटिक जोन्स अकॉर्डिंग टू कोपेन। तो ये 5 जोन्स जो हैं क्लाइमेट के, ये हैं ट्रॉपिकल, ड्राई, टेम्परेट, कोल्ड एंड पोलर जोन्स। तो इन्हीं क्लाइमेटिक जोन्स के बारे में आज हम लोग डिस्कस करते हैं। 5 large regions: tropical, dry, mid latitude, high latitude and highland. These 5 regions are identified by Köppen. Vladimir Köppen was a Russian German scholar who declared his theory of classification of climate in the year 1918. 1918 में कोपेन ने अपना क्लासिफिकेशन दिया था, और तब से लेकर के आज तक इसे ही सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट, सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक क्लासिफिकेशन क्लाइमेट जोन माना जाता है। These are 5 climatic zones, along with there are sub regions too। तो सब रीजन्स को मिला करके, क्लाइमेटिक जोन्स को मिला करके टोटल 12 क्लाइमेटिक जोन्स आइडेंटिफाई किए हैं कोपेन ने। 12 climatic zones are identified by Köppen under 5 climatic zones। तो पहला क्लाइमेटिक रीजन है ट्रॉपिकल वेट। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये ट्रॉपिकल वेट जोन जो है 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ के बीच में लाया करता है। यहाँ पर रोज़ बारिश होती है, हमेशा गर्म रहता है, ऑलवेज हॉट, सनी इन द मॉर्निंग बट रेन डेली। तो यहाँ रोज़ बारिश होती है। लॉट्स ऑफ रेनफॉल 80 इंचेस तक, ऑन एन एवरेज 80 इंच तक रोज़ बारिश होती है।
सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका में ये पाया जाता है, अफ्रीका में पाया जाता है और साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है। तो देखिए ये साउथ ईस्ट एशिया का रीजन है, यहाँ पर जो साउथ वेस्ट एशिया लिखा हुआ है ये साउथ ईस्ट एशिया है। तो ये साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका और अफ्रीका के रीजन में ये पाया जाता है। यहाँ पर देखिए जो पहला आइडेंटिफिकेशन किया कोपेन ने, ये पहला आइडेंटिफिकेशन ट्रॉपिकल वेट कहलाता है और ये इक्वेटर के आसपास की कंट्री में ही होता है। तो ये जितनी भी कंट्रीज़ हैं, जैसे अभी हमने बेलिज़ आपको बताया था एग्जाम्पल, तो ये बेलिज़ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है बेलिज़, यहाँ पर बताया था ना नॉर्थ और साउथ अमेरिका के बीच में, तो यहाँ पर है बेलिज़। तो ये जितनी भी कंट्रीज़ हैं ये सब इक्वेटोरियल कंट्रीज़ हैं और इनमें इक्वेटोरियल रेनफॉल पाया जाता है और इक्वेटोरियल वेजिटेशन होता है। बारिश होने की वजह से यहाँ पर रोज़ बारिश होती है और जो प्लांट्स हैं वो हमेशा ग्रीन रहते हैं, इसीलिए एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कहा जाता है इन यहाँ पर पाए जाने वाले वेजिटेशन को, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। और एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट में महोगनी, रोजवुड, बैम्बू जैसे वेजिटेशंस पाए जाते हैं। तो ये यहाँ के वेजिटेशंस हैं। अब आप यहाँ पर इमेज देखिए एनिमल्स की, यहाँ पर जो एनिमल्स होते हैं वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ग्रीन कलर ही अडॉप्ट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पूरी जगह पर ग्रीनरी दिखाई देती है। तो एनिमल्स वहाँ पर अलग से शो होंगे, तो इसीलिए इनकी स्किन भी उसी के अकॉर्डिंग मॉडिफाई हो जाती है। जैसे यहाँ पर ये है हाइला एक ऐसा फ्रॉग है, फ्रॉग की स्पीशीज़ है जो बहुत ऊंचे जंप कर सकता है और इसीलिए इसे फ्लाइंग फ्रॉग, उड़ने वाला मेढक कहा जाता है। अब इसके उड़ने के लिए पंख नहीं होते, लेकिन ये जंप करके इतना ज़्यादा हाई जंप कर पाता है कि इसे उड़ने वाला मेढक, फ्लाइंग फ्रॉग कहा जाता है। तो ये कुछ स्पेशल फीचर्स हैं ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट के। अब हम लोग बात करते हैं सब रीजन ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई। ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई, अब यहाँ पर देखिए वहाँ हमेशा रोज़ बारिश हो रही थी, यहाँ पर बारिश कभी कभी होती है। वेट रीजन रहता है, वेट रीजन है, लेकिन यहाँ पर ड्राई रीजन भी रहता है। रेनी सीजन इन समर, वार्मर टेम्परेचर। तो यहाँ पर समर्स में गर्मी होती है, जैसे हमारे यहाँ इंडिया में जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है मई जून में, तो जुलाई अगस्त में मानसून आ जाता है। तो गर्मियों के सीज़न में बारिश होती है और इसे ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट कहा जाता है। ड्राई सीज़न विंटर में रहता है, विंटर्स जो हैं यहाँ पर ड्राई रहते हैं, बहुत ठंड पड़ती है यहाँ पर। रेनफॉल थोड़ा सा कम होता है, ट्रॉपिकल वेट से थोड़ा सा कम होता है। जैसे अफ्रीका, साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका, पार्ट्स ऑफ एशिया, तो यहाँ पर देखिए इंडिया में, पार्ट्स ऑफ एशिया में ये रीजन है ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई का, ऑस्ट्रेलिया में ये है। अब ये इक्वेटर के रीजन के थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा नीचे आ गया, इक्वेटर से थोड़ा सा स्लाइड हो गया ऊपर, स्लाइड हो गया नीचे, तो इसे कहते हैं ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई रीजन। यहाँ पर विंटर्स जो हैं वो ड्राई रहते हैं, समर्स में बारिश होती है और थोड़ी कम बारिश होती है इक्वेटोरियल रीजन से, लेकिन दुनिया का सबसे ज़्यादा बारिश वाला क्षेत्र इंडिया में ही इसी रीजन में पाया जाता है, जिसे कहते हैं मौसिन राम। मेघालय में है ये मौसिन राम, पहले चिरापुंजी हुआ करता था, अब मौसिन राम में सबसे ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। तो दुनिया का सबसे ज़्यादा वेट एरिया, सबसे ज़्यादा बारिश वाला एरिया इंडिया में है, ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट में। यहाँ पर जो वेजिटेशन होता है, अब ड्राई क्लाइमेट है, जो बारिश है रोज़ नहीं हो रही है, तो यहाँ पर डेसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, डेसिडुअस फॉरेस्ट। और डेसिडुअस फॉरेस्ट की वजह से यहाँ पर ऐसे पेड़ होते हैं जो जब बारिश होती है तो बहुत ज़्यादा ग्रीनरी
लपेटे हुए रहते हैं, बहुत ज़्यादा ग्रीन होते हैं, लेकिन जब ड्राई विंटर्स आते हैं या जो समर सीज़न आता है उस टाइम ऑटम्न होता है और ऑटम्न में पतझड़ होता है, पतझड़ में पत्ते गिर जाते हैं और फिर बाद में दोबारा जब रेनी सीज़न आता है तो रेनी सीज़न में फिर उनमें नए पत्ते आते हैं। तो इसे डेसिडुअस प्लांट कहा जाता है। जैसे बैनियन ट्री है एग्जाम्पल, पीपल है, बैनियन है, पीपल है, मैपल है, ओक है, ये दीज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ डेसिडुअस फॉरेस्ट। ये सब अपने पत्ते गिरा देते हैं। जैसे आपने अगर कभी शाहरुख खान की मूवीज़ देखी हो, जैसे कुछ कुछ होता है या मोहब्बतें, तो उसमें आपने देखा होगा पत्ते टूट टूट करके येलो येलो कलर के गिर रहे हैं रोड पर, और ये येलो कलर के जो ट्रीज़ हैं इन्हें मैपल ट्रीज़ कहा जाता है। सेमी एरिड जोन, लेस देन 20 इंचेस ऑफ रेनफॉल। यहाँ पर बहुत कम बारिश होती है, मतलब इतनी भी कम नहीं कि डेजर्ट आ जाए, बारिश होती है लेकिन बहुत कम। तो 20 इंच की बारिश होती है पूरे साल भर में। समर्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, विंटर्स में इतनी ज़्यादा ठंडक नहीं होती, माइल्ड विंटर्स होते हैं। इंटीरियर ऑफ कॉन्टिनेंट्स यूजुअली नियर डेजर्ट। तो यहाँ पर डेजर्ट के आसपास वाला जो क्षेत्र है इसे सेमी एरिड जोन कहा जाता है। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में थार डेजर्ट है, तो थार डेजर्ट तो पूरी तरीके से रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। उसके आसपास जैसे जैसलमेर है या जयपुर है या झुंझुनू है, इस तरीके की जो एरिया है ये सेमी एरिड, पूरा राजस्थान सेमी एरिड है, तो ये सेमी एरिड जोन कहलाती है। यहाँ पर डेजर्ट एरिया जैसा ही क्लाइमेट होता है ऑलमोस्ट। यहाँ पर ये देखिए आप, अफ्रीका में ये वाला रीजन, साउथ अफ्रीका में यहाँ नामिब डेजर्ट है, नामीबिया कंट्री है, नामिब डेजर्ट है, कालाहारी डेजर्ट है यहाँ पर। यहाँ ये वाला नहीं आया, जो सहारा है वो वाला नाम नहीं आया, यहाँ ये नामिब डेजर्ट वाला आया, तो इन्हें सेमी एरिड कहा जाता है। ये डेजर्ट एरिया नहीं है, ये सेमी एरिड एरिया है, क्योंकि यहाँ पर बारिश डेजर्ट एरिया से ज़्यादा होती है। तो डेजर्ट एरिया कहते किसे हैं? डेजर्ट एरिया कहते हैं जहाँ हायर इवेपोरेशन हो, लेसर प्रेसिपिटेशन हो। लेसर प्रेसिपिटेशन एंड हायर इवेपोरेशन। Lesser precipitation and higher evaporation is called as desert. डेजर्ट का टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं है। आप लोग जैसे ही हम डेजर्ट बोलते हैं तो बस वही रेगिस्तान और ऊंट सोचने लग जाते हो, वैसे ही लोग सऊदी अरेबिया वाले इमेजिन करने लग जाते हो। ये डेजर्ट नहीं है। डेजर्ट हॉट भी होते हैं, डेजर्ट कोल्ड भी होते हैं, ठंडे डेजर्ट। ये जो ठंडे डेजर्ट हैं ये आपको चाइना और मंगोलिया के बॉर्डर पर देखने को मिल सकते हैं। वैसे और भी हैं, लेकिन चाइना एंड मंगोलिया के बॉर्डर पर यहाँ पर गोबी डेजर्ट है, गोबी डेजर्ट मंगोलिया में। तो ये कोल्ड डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट, ठंडा डेजर्ट। ऐसे ही यहाँ ग्रेटर हिमालय में भी ठंडा डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट। तो ये कोल्ड डेजर्ट भी होते हैं। इसका गर्मी से, टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं है डेजर्ट का। डेजर्ट की जो डेफिनेशन है वो ये है, लेसर प्रेसिपिटेशन एंड हायर इवेपोरेशन। मतलब इवेपोरेशन मतलब जो पानी है वो इवेपोरेट होकर के वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए, और पानी बहुत कम बरसे, और जो भी बरसे वो पूरा का पूरा इवेपोरेट हो जाए। तो ये लेसर प्रेसिपिटेशन एंड हायर इवेपोरेशन का कॉन्सेप्ट होता है डेजर्ट का। तो ये है डेजर्ट। ये दो टाइप के होते हैं, हॉट एंड कोल्ड। यहाँ पर 10 इंच से भी कम बारिश होती है, लेसर प्रेसिपिटेशन होता है यहाँ पर। हॉट डेजर्ट टिपिकली इन साउदर्न हेमिस्फीयर, ज़्यादातर साउदर्न हेमिस्फीयर में पाए जाते हैं, लेकिन अफ्रीका में जो सहारा डेजर्ट है वो हॉट डेजर्ट है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। यहाँ ऑस्ट्रेलिया के डेजर्ट, क्वींसलैंड वाले जो हैं, ये सब
डेजर्ट एरिया में आते हैं। ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़ा डेजर्ट है। इसके अलावा यहाँ पर ये देखिए, ये कालाहारी डेजर्ट इंडिया का, ये थार डेजर्ट, ये सब डेजर्ट कैटेगरी में आते हैं। इसमें वेजिटेशन थॉर्नी होता है, इसे ज़ीरोफाइट्स कहा जाता है। ज़ीरोफाइट्स, ज़ीरोफाइट्स का मतलब है कि कैक्टस, एलोवेरा टाइप का वेजिटेशन जहाँ पर लीव्स में थ्रोन्स में कन्वर्जन हो गया है। लीव्स जो हैं, पत्तियाँ कांटों में बदल गई हैं और जो स्टेम है वो फूल करके फ्लैशी हो गया है और इवेपोरेशन नहीं होने दे रहा है वाटर का। तो ये इस टाइप का वेजिटेशन ज़ीरोफाइट कहलाता है। कोल्ड डेजर्ट, जो कोल्ड डेजर्ट हैं वो टिपिकली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पाए जाते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पर आपको बताया था, ये गोबी डेजर्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, तो ये कोल्ड डेजर्ट भी इसी डेजर्ट एरिया में आते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। अब फोर्थ टाइप ऑफ क्लाइमेट है, देखिए फर्स्ट है ये ट्रॉपिकल वेट, सेकंड है ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई, थर्ड है सेमी एरिड, फोर्थ है डेजर्ट, फिफ्थ है मेडिटेरेनियन, सिक्स्थ है टुंड्रा। तो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट में देखिए, इसमें क्या होता है कि जैसे अभी हम लोगों ने सेमी एरिड में देखा था कि समर सीजन में बारिश हो रही थी और विंटर्स जो थे वो ड्राई थे। यहाँ पर उल्टा होता है, यहाँ पर समर्स ड्राई होते हैं और विंटर्स वेट होते हैं। मतलब बारिश जो होती है वो ठंड के मौसम में होती है, जबकि समर्स पूरी तरीके से ड्राई होते हैं। तो ड्राई एंड हॉट समर्स, कोल्ड एंड रेनी विंटर्स, ये मेडिटेरेनियन का फीचर है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है मेडिटेरेनियन सी और इस मेडिटेरेनियन सी के आसपास जितना भी एरिया है यूरोप और अफ्रीका का, ये पूरा मेडिटेरेनियन क्लाइमेट का रीजन होता है। इसके अलावा भी चिली में यहाँ पर मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है, यहाँ कैलिफोर्निया में मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है, साउथ अफ्रीका में मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है, ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ साउथ ऑस्ट्रेलिया में मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है। तो इतनी जगह पर मेडिटेरेनियन क्लाइमेट पाया जाता है। केवल मेडिटेरेनियन सी के आसपास ही नहीं होता, ये और भी जगह होता है। और जहाँ मेडिटेरेनियन क्लाइमेट पाया जाता है वहाँ पर वेजिटेशन ज़्यादातर सिट्रस फ्रूट्स का होता है। सिट्रस फ्रूट्स मतलब जो खट्टे रसदार फल होते हैं, जैसे संतरा, नींबू, नारंगी, ये मेडिटेरेनियन फ्रूट्स कहे जाते हैं। तो ये मेडिटेरेनियन क्लाइमेट में ही होते हैं। तो यहाँ का वेजिटेशन यही है। अब जैसे अंगूर है, ग्रेप्स, तो यहाँ मेडिटेरेनियन क्लाइमेट की वजह से ग्रेप्स का प्रोडक्शन बहुत होता है और इसीलिए वाइन इंडस्ट्री यहीं पर बनाई गई। अब बात करते हैं हम लोग टुंड्रा रीजन की। टुंड्रा रीजन, तो देखिए टुंड्रा रीजन का ये है मैप। जो हायर एल्टीट्यूड वाले रीजन हैं अर्थ पर, हायर एल्टीट्यूड का मतलब जो आर्कटिक सर्किल के पास वाले रीजन हैं, तो आर्कटिक सर्किल के पास वाले रीजन्स को टुंड्रा रीजन कहते हैं। यहाँ पर देखिए, ये पूरा नॉर्थ अमेरिका में अलास्का और ये वाला पूरा रीजन, ग्रीनलैंड वाला पूरा रीजन, ये साइबेरिया वाला पूरा रीजन, ये सब टुंड्रा रीजन है। यहाँ हमेशा बर्फ़ जमी रहती है। बर्फ़ जमी रहने की वजह से यहाँ पर जो वेजिटेशन होता है वो कॉनिकल होता है और कॉनिकल वेजिटेशन को कहते हैं कोनीफेरस ट्रीज। इनकी जो पत्तियाँ होती हैं वो नुकीली होती हैं, कोनीफेरस ट्रीज। जैसे ये आप देख पा रहे हैं, ये कोनीफेरस ट्रीज हैं। यहाँ इसमें स्प्रूस आते हैं, स्प्रूस आते हैं, सीडर आते हैं, पाइन्स आते हैं, जूनिपर्स आते हैं, इतना सारा और भी बहुत सारे वेजिटेशंस हैं जो इस कॉनिफेरस ट्रीज में आते हैं। ये
इनकी पत्तियां नीचे बहुत लंबी होती हैं, ऊपर टॉप पर बहुत ज़्यादा छोटी हो जाती हैं और इसीलिए कोन्स का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, इसीलिए इन्हें कोनीफेरस ट्रीज कहा जाता है। यहाँ पर जो एनिमल्स पाए जाते हैं, ठंड की वजह से इनकी शरीर पर बहुत मोटी स्किन होती है और उस पर बाल होते हैं, जैसे पोलर बियर। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, पोलर बियर यहाँ का एक टुंड्रा का स्पेसिफिक आइडेंटिटी क्रिएचर है। तो ये इस टाइप के क्लाइमेट हम लोगों ने डिस्कस किए। इसके अलावा भी और भी क्लाइमेट्स होते हैं, जैसे यहाँ पर आप देखिए, अगर आपको ये इमेज में दिख रहा हो, मैं आपको नाम बोल रहा हूँ, 12 क्लाइमेटिक जोन्स बताए हैं कोपेन ने। ये 12 क्लाइमेटिक जोन्स हैं, ट्रॉपिकल वेट, ट्रॉपिकल ड्राई, सेमी एरिड, एरिड, मेडिटेरेनियन, मरीन, छठा हो गया मरीन, सातवां हो गया ह्यूमिड, आठवां हो गया कूल समर, नवां हो गया सब आर्टिक, 10वां हो गया टुंड्रा, 11वां हो गया हाईलैंड्स और 12वां हो गया आइस क्लाइमेट। तो ये दीज 12 क्लाइमेट्स आर आइडेंटिफाइड बाय कोपेन। तो हम लोगों ने 6 डिस्कस किए और 6 इनके सब रीजन्स होते हैं। तो 6 तो ये क्लाइमेटिक जोन है और फिर 6 के अलावा इनके ये 6 रीजन्स भी हैं। वैसे 5 क्लाइमेटिक जोन्स बताए हैं हम लोगों ने। जो ट्रॉपिकल वेट डिस्कस किया और ट्रॉपिकल वेट के अंदर ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई डिस्कस किया, वो ट्रॉपिकल वेट का एक सब रीजन है। तो ये 5 रीजन्स होते हैं। सॉइल एंड वेजिटेशन रीजन्स। तो देखिए, ये जो क्लाइमेटिक रीजन्स हैं, इन क्लाइमेटिक रीजन्स की वजह से पर्टिकुलर एरिया में अलग अलग प्रकार की सॉइल्स आती हैं और अलग अलग प्रकार के वेजिटेशन रीजन्स आते हैं। तो अब हम इनके बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आप ये इमेज देख रहे हैं, इस इमेज में आपको ये प्लांट्स दिख रहे हैं, अलग अलग टाइप के प्लांट्स और अलग अलग टाइप के एनिमल्स दिख रहे हैं। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज ऑफ प्लांट्स को कहा जाता है फ्लोरा। डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज ऑफ एनिमल्स को कहा जाता है फौना। तो वेयर इन अ पर्टिकुलर रीजन डिफरेंट स्पीशीज ऑफ प्लांट एंड डिफरेंट स्पीशीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना आर एग्जिस्टिंग इज कॉल्ड एज इकोसिस्टम। इसे इकोसिस्टम कहा जाता है। तो ये जो पूरा डिपिक्शन है, ये इकोसिस्टम का डिपिक्शन है। इसमें डिफरेंट स्पीशीज ऑफ प्लांट, डिफरेंट स्पीशीज ऑफ एनिमल्स आपको एक पर्टिकुलर रीजन में दिखेंगी। तो इसे इकोसिस्टम कहा जाता है। इस पर्टिकुलर इकोसिस्टम में अलग अलग रीजनल इकोसिस्टम्स होते हैं। इन अलग अलग रीजनल इकोसिस्टम्स को बायोम्स कहा जाता है। और बहुत सारे बायोम्स होते हैं, जैसे टुंड्रा इज अ बायोम इटसेल्फ। टुंड्रा के अलावा फॉरेस्ट बायोम है, ग्रासलैंड बायोम है, डेजर्ट बायोम है। तो ये सब बायोम होते हैं। बायोम इज अ पार्ट ऑफ इकोसिस्टम, इट इज कॉल्ड एज रीजनल इकोसिस्टम। तो अब हम लोग फॉरेस्ट लैंड की बात करते हैं। तो फॉरेस्ट लैंड में क्या होता है, जैसे यहाँ पर आप देखिए, ये आपको येलो ट्रीज दिख रहे हैं। अभी हमने शाहरुख खान की फिल्म का एग्जाम्पल दिया था। तो ये है डेसिडुअस ट्री। तो डेसिडुअस ट्रीज ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट में पाए जाते हैं। ये ड्राई सीजन में, समर सीजन में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं और फिर जब रेनी सीजन आता है तो फिर इनमें नई पत्तियां आती हैं। तो इस तरीके के जो लीफ शेडिंग ट्रीज होते हैं, इन्हें कहा जाता है डेसिडुअस ट्रीज। जैसे डेसिडुअस ट्रीज के एग्जाम्पल हैं बैनियन ट्री, पीपल ट्री, अशोका ट्री। ये तो इंडिया के वेजिटेशन है। अमेरिका और कनाडा में मैपल ट्री, ओक ट्री, ये सब डेसिडुअस ट्रीज के एग्जाम्पल हैं। इन्हें डेसिडुअस ट्रीज कहा जाता है। अब सेकेंड टाइप ऑफ ट्री है, यहां पर आप देखिए ये कोनीफेरस ट्रीज। कोनीफेरस ट्रीज अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, जो कोन्स की फॉर्म में
बढ़ते हैं, जैसे क्रिसमस ट्री है, तो ये बहुत ज़्यादा हाईलैंड्स पर रहते हैं जहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा रहती है। माउंटेन रीजन जिसे टुंड्रा रीजन कहा जाता है, वहाँ पर ये पाए जाते हैं। तो इनमें भी कोनीफेरस ट्रीज में भी कोन्स होते हैं, डोंट ड्रॉप लीव्स एंड निडल्स, तो इनकी पत्तियां कभी नहीं गिरती और पत्तियां जो हैं वो निडल्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं, जैसे स्प्रूस, पाइन, स्प्रूस, पाइन, जूनिपर्स, ये कोनीफेरस ट्रीज के एग्जाम्पल्स होते हैं। स्प्रूस, पाइन्स, जूनिपर्स, क्रिसमस ट्री, ये सब कोनीफेरस ट्रीज के एग्जाम्पल होते हैं। अब रेन फॉरेस्ट की बात करते हैं। रेन फॉरेस्ट में पत्तियां बहुत बहुत बड़ी होती हैं, क्योंकि ये कभी पत्तियां गिराते नहीं हैं और हमेशा बारिश होने की वजह से इनको रोज़ पानी मिलता है और इससे पत्तियों का जो इवेपोरेशन का क्राइटेरिया है ये भी बढ़ जाता है। अगर इनटेक ज़्यादा हो रहा है तो इवेपोरेट भी तो ज़्यादा करना पड़ेगा, तो इवेपोरेशन के लिए सरफेस भी तो ज़्यादा होनी चाहिए, तो सरफेस ज़्यादा होने के लिए बहुत बड़ी बड़ी पत्तियाँ हो जाती हैं, लंबी लंबी पत्तियाँ होती हैं, चौड़ी पत्तियाँ होती हैं, ग्रीन हमेशा रहते हैं, इसीलिए इन्हें एवरग्रीन फॉरेस्ट कहा जाता है। एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है इन्हें रेन फॉरेस्ट एरिया कहा जाता है, जैसे महोगनी है, महोगनी, रोजवुड, टीक, these are the examples of रेन फॉरेस्ट, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट। यहाँ पर पत्तियाँ बड़ी बड़ी होती हैं तो एनिमल्स को अपने अंदर काफ़ी अच्छे प्रोटेक्शन का चांस देती हैं। एनिमल्स जो यहाँ पर पाए जाते हैं बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट स्पीशीज़ होती हैं, जैसे अमेज़न रेन फॉरेस्ट में डिफरेंट स्पीशीज़ पाई जाती हैं, एनाकोंडा है और हाइला अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। इस टाइप के वेजिटेशंस और फ्लोरा और फौना पाए जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सॉइल एंड वेजिटेशन में ग्रास लैंड्स की। ये ट्रीज नहीं होते, ये ग्रासेस होती हैं और ग्रासेस में सबसे बड़ी ग्रास है बैम्बू, जो इंडिया में पाई जाती है। तो ये बैम्बू जो है ये भी एक एवरग्रीन फॉरेस्ट का ही एग्जाम्पल है। ये भी कभी अपनी पत्तियां नहीं गिराते और बहुत बड़ी पत्तियां होती हैं इनकी, जो इनका स्टेम होता है ये बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है। तो ग्रास लैंड्स की बात कर रहे हैं हम लोग, बहुत ऊंची ऊंची पत्तियां, हाथी तक, अफ्रीका में इतना ऊंचे ग्रास लैंड्स पाए जाते हैं कि हाथी तक उनमें दिखाई नहीं देते चलते हुए, इतने ऊंचे ऊंचे घास उगती हैं। तो ये जो ग्रास लैंड्स होते हैं, इन ग्रास लैंड्स में इन्हें बेसिकली बाउल फूड बाउल ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है, क्योंकि इनमें पाए जाते हैं प्रेरीज, ये प्रेरीज, और जो प्रेरीज हैं ये बहुत अच्छे वीट ग्रास के ग्रासलैंड्स होते हैं, तो इसीलिए इन्हें फूड बाउल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। प्रेरीज पाए जाते हैं यूएसए में, प्रेरीज पाए जाते हैं यूएसए में, स्टेपीज पाए जाते हैं एशिया में, एशिया और यूरोप दोनों में, यूरेशिया आप इन्हें कह सकते हो। सवाना पाए जाते हैं अफ्रीका में, और उसमें भी नॉर्थ अफ्रीका में, वेस्ट अफ्रीका में सवाना ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं। इसके अलावा वेल्ड पाए जाते हैं साउथ अफ्रीका में, वेल्ड हैं साउथ अफ्रीका में, डाउन्स हैं ऑस्ट्रेलिया में, डाउन्स पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में, और पंपास पाए जाते हैं अर्जेंटीना में,
लानोस पाए जाते हैं वेनेजुएला में, वेनेजुएला में लानोस। कटिंगा पाए जाते हैं अफ्रीका में, बहुत सारे हैं, बहुत सारे ग्रासलैंड्स हैं अलग अलग नाम से। देखिए दो टाइप के मैप होते हैं, पॉलिटिकल मैप और फिजिकल मैप। पॉलिटिकल मैप जो होता है उसमें बाउंड्रीज बनी रहती हैं, कंट्रीज़ को आइडेंटिफाई किया जाता है, उनकी कैपिटल्स को बनाया जाता है, तो उसे पॉलिटिकल मैप कहा जाता है। फिजिकल मैप में यही सारे फीचर्स होते हैं, जैसे माउंटेन्स होते हैं, रिवर्स होती हैं, लेक्स होते हैं, वैलीज होती हैं, ग्रासलैंड्स होते हैं। तो ज़्यादातर फोकस आप फिजिकल मैप पर किया करिए। ज्योग्राफी को मैप से अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत इजीली आपको समझ में आएगी और बहुत देर तक लॉन्ग लास्टिंग रहेगी आपकी मेमोरी में। तो ये मैप के थ्रू अगर आप आइडेंटिफाई करेंगे तो बहुत अच्छा आपको रिवीजन होगा और याद रहेगा, मेमोराइज रहेगा। तो हम लोगों ने आज डिस्कस किया हीट बजट के बारे में और क्लाइमेट कंडीशन के बारे में, सॉइल्स एंड वेजिटेशंस के बारे में। डेजर्ट एंड टुंड्रा ये भी एक सॉइल एंड वेजिटेशन का रीजन है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये डेजर्ट रीजन में वेजिटेशन बहुत कम होता है, बारिश बहुत कम होती है, 10 इंच से भी कम बारिश होती है, जीरोफिटिक वेजिटेशन यहाँ पर पाया जाता है। एनिमल्स एंड प्लांट्स इन दीज एरियाज अडेप्ट टू कोल्ड एंड ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशंस। तो यहाँ पर जो प्लांट्स होते हैं वो इस तरीके की क्लाइमेटिक कंडीशंस को अडॉप्ट करके वैसे बन जाते हैं, जैसे यहाँ का स्टेम जो है फूल करके पानी को स्टोर करने लग जाता है। ऐसे ही यहाँ टुंड्रा रीजन में जो वेजिटेशन होता है, यहाँ पर आइस कैप बहुत ज़्यादा होता है, आइस जमी रहती है हमेशा, जिसकी वजह से यहाँ पर जो वेजिटेशन है वो वैसा ही हो जाता है कोनीफेरस। अब बारिश को स्नो गिर रही है तो स्नो पूरी तरीके से नीचे ज़मीन पर आकर के गिरे तो इस तरीके का कोनीफेरस प्लांट, कोनीफेरस वेजिटेशन यहाँ देखने को मिलता है। यहाँ पर पोलर बियर्स जैसे एनिमल्स पाए जाते हैं। तो आज इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।